स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस। बेसिक कोर्स की हमारी 27 नंबर क्लास है और बड़े अच्छे मौके हैं। फार्म निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा, राजस्थान हाई कोर्ट के अभी निकले हैं, बल्क में वैकेंसीज़ हैं और लास्ट टाइम हमारा एम्स का रिटर्न भी हुआ है, उसका रिज़ल्ट आएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का स्किल टेस्ट होना है। लेकिन आप जो लोग हमारे बेसिक कोर्स में अब इन्वॉल्व हैं, बेसिक कोर्स कर रहे हैं, वो बच्चे भी सारे फॉर्म भरते रहें और भविष्य में आपका जल्दी सिलेक्शन हो। इसके लिए हम अपनी क्लास में अभी जो क्लासेस 27 आज हमारी हैं, पिछली क्लासेस में हम डिक्टेशन से ही स्टार्ट करते हैं। 26 क्लास में हमने 44 नंबर एक्सरसाइज तक डिक्टेट किया था और अब इसमें हम 45 से डिक्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको लिखना ज़रूरी है। लिखने से पहले जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उससे पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपकी पिटमेंट शॉर्टेड बुक आपके पास होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 45। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब मैं डिक्टेट करता हूँ तो जो ज्वाइनिंग्स हैं उनको इकट्ठा ही बोलूँगा, फुल स्टॉप कोमा को मैं नहीं बोलूँगा, आपको खुद लगाने होते हैं। इंडिकेशन मिलता है, कोमा पे कम रुकता हूँ, फुल स्टॉप पे थोड़ा ज़्यादा, और यही पैटर्न आगे आपको किसी भी स्किल टेस्ट में मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 45। तो स्टूडेंट्स रेडी? 45 नंबर स्टार्ट। वी आर सॉरी दैट यू कुड नॉट यूज द stockings we sent you a few days ago. Our stock of the exact shade you specified was exhausted, so we sent instead a similar shade and style. We had no doubt that you could use them, but we should not have shipped them without first writing to you. If you wish, they may be sent back to us and we shall cancel the charge. Exercise number 46. We are having a benefit show next Wednesday night and I am writing to invite you to come. Aid is badly needed for some special cases we have on our list, and all the money is to be used for that purpose. The cost of the tickets is 3/6 each. I know that you will wish to assist the cause as much as possible and that you will let me have your check for several tickets. Exercise number 47. The attached sheet shows the result of the year's business. You will note that except for the first 2 months, business for the year was good. We adopted a new sales policy in March, and since that time we have enjoyed the
benefit of our new methods. We have had about twice as many sales as in the last year. We think that this is the best evidence we could have of the value of our new policy. Exercise number 48. We have sent several notes to you asking you to pay the bill for the goods you bought 6 months ago, but you have not answered any of them. We are sorry to say that now we shall have to take the usual steps to avoid the loss of our money if your check is not received by the first of the next month. We urge you to mail your check to us without delay. Exercise number 49. We are sorry that you received in error a check indeed for Reed and Sons of Edinburgh. Thank you for passing it to us. We are writing today to Reed and Sons, taking them to let you have the check which we should have sent to you. No doubt you will receive it without delay. Next exercise number 50. I am happy to say that the cut in rates about which I wrote to you in March is now to be put into effect. I think that the rate on your house is subject to change on the new basis. Your policy should be sent to this office as soon as possible so that you may have the benefit of the reduced rate. Next exercise number 51. We have looked for a small house for you and we think we have just the house you will wish to buy. It has 6 nice rooms and 2 baths. The lot is large and the house is so located that each room has a lovely view.
We think you could not buy a house in a nicer spot. If you like, we can go out to see it tonight. It will take us about 40 minutes by car to get to Meadow Park. Exercise number 52. We have sent to you today a copy of our latest catalog as well as some special booklets which we think you will like to have. When any new designs are issued, we shall post details to you so that you will be up to the minute. As far as we know, these designs are not stocked by anybody else in your territory, and no doubt they will be popular with your customers. तो स्टूडेंट्स, इस हमारे 27th क्लास में ये डिक्टेशन का सेशन यही है, 52 तक रहेगा। बार बार प्रैक्टिस कीजिए और आगे की प्रैक्टिस करके रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बोलेंगे और हम आपको अब वापस क्लास में ले चलते हैं जहां हम आपको कंपाउंड कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे थे। अब उसका रिमेनिंग पार्ट आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा हमारा बेसिक कोर्स में लास्ट 26th क्लास में हमारा चैप्टर 14 का थोड़ा पार्ट बाकी था, मैं आपको दोबारा से एक बार थोड़ा सा रिवाइज इस बात को करा रहा हूँ कि कंपाउंड कॉन्सोनेंट था। इसमें हमें 6 कंपाउंड कॉन्सोनेंट, मतलब जो कॉन्सोनेंट दो साउंड एक कॉन्सोनेंट में आ रही है मिलके, जो भी हमारे ऐसे वर्ड है जहाँ पे वो चीज़ इकट्ठी ज़्यादा वर्ड्स में आते हैं, उसके लिए कंपाउंड कॉन्सोनेंट यूज़ किया था हमने। और ये चैप्टर 14 में सारा स्टार्टिंग यही थी कि हमारे 6 कॉन्सोनेंट थे। के डब्ल्यू क्वा, जी डब्ल्यू गुआ, एम को डार्क किया तो एम के साथ पी जुड़ गया और एम के साथ बी भी जुड़ गया। उसके बाद एल आर लर, इसको डाउनवर्ड एल किया, हमने डार्क कर दिया ये। उसके बाद हमने आर आर किया, डार्क कर दिया ये। उसके बाद हमने डब्ल्यू एच किया, वाह, डब्ल्यू वाले को बड़ा करा तो डब्ल्यू एच, जितना भी डब्ल्यू एच के वर्ड्स थे हमारे वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं, क्योंकि डब्ल्यू एच बहुत सारे वर्डों में इकट्ठा था। ये हमने बताया था चैप्टर में स्टार्टिंग में, इसके हमने सारे रूल बता दिए थे। ये आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी थी और अब नहीं करिए तो अब कीजिए। और एक्सरसाइज हमने इसमें आपको करने के लिए बताई थी 109, 1010 और 111। और इसी में जो अब आगे रिमेनिंग पार्ट्स है इसी का कंपाउंड कॉन्सोनेंट का, अब ये कहता है कि पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट है भाई, कंपाउंड में कर रहे हैं, डब्ल्यू के साथ अगर एल आता है और डब्ल्यू के साथ अगर एच एल आता है। बहुत सारे वर्ड है, आपने देखा होगा इंग्लिश में डब्ल्यू के साथ एल का एक पूरा सीरीज है और डब्ल्यू एच एल की वर्ड्स की एक पूरी सीरीज है। तो इसका कहना यही है यहाँ पे पिटमैन सर का कि डब्ल्यू और एच ना बना के और डब्ल्यू एच और एल ना बना के कंपाउंड मिला हुआ कॉन्सेप्ट है जो हमें रिप्रेजेंट करेगा डब्ल्यू एल। एल के अंदर छोटा हुक डब्ल्यू एल की सीरीज को हमें देगा। जैसे वेल वर्ड है, वेल एग्जाम्पल वर्ड से मिलेगा आपको वेल, विल है। अब देखो रूल आया था पहले कि एल किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ मिलके, वर्ड के साथ मिलके विल रिप्रेजेंट करता है, अकेला एल लॉर्ड शॉर्ट फॉर्म है। अब वहां पे ये बात थी कि सिर्फ अकेला विल कैसे बनाएंगे, तो ये इसी में है, डब्ल्यू में एल के साथ छोटा हुक है। जबकि ये हुक अगर बड़ा हो जाएगा तो ये डब्ल्यू एच एल, ये पहले कॉन्सोनेंट बनाना आपको याद करना है
कि एल के अंदर की तरफ इनिशियल है, छोटा होगा तो डब्ल्यू एल है, बड़ा होगा तो डब्ल्यू एच एल है। इसमें आपको बताता हूँ वाहिल वर्ड आया, वाहिल, तो डब्ल्यू एच वाले जितने भी आएंगे हमारे वो एल के इनसाइड हमारा बड़ा हुक आ जाएगा, ये डब्ल्यू एच को रिप्रेजेंट करेगा। और ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, पूरी सीरीज है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 120 पिटमैन न्यू ईरा कोर्स में 120 पे इसके एग्जाम्पल्स है वर्ड्स के। फिर एक्सरसाइज नंबर 112 आपको करनी वैसे ही है, रजिस्टर में एक लाइन में जहां तक आपकी आता है शॉर्ट हैंड उसको रिपीट करना, मिनिमम 5, मैक्सिमम आपकी लिमिट नहीं है, ज़्यादा करोगे जल्दी स्पीड बढ़ेगी, जल्दी समझ में आएगा। फिर उसकी इंग्लिश एक बार लिखनी होती है। तो इसके बाद एक शॉर्ट फॉर्म कोई नहीं है इसके बाद। अब उसके बाद 112 नंबर एक्सरसाइज है, वो आपने जैसे मैंने बताया वो करनी है। अब इसमें अगला एक रूल आता है कि टिक एंड डॉट एच, ये कंपाउंड कॉन्सोनेंट से बिल्कुल अलग है, लेकिन चैप्टर में है 14 में ही। रूल नंबर 62 है, पेज नंबर 121 आपकी पिटमैन न्यू ईरा में। तो रूल बताया गया है कि टिक एंड डॉट एच, टिक एंड डॉट एच, आपने जो पहले एच के रूल हमने बताए थे, एच का एक हमारा कॉन्सोनेंट का अलग से स्टार्टिंग थी कि भाई एच हमारा क्या होता है कि दो तरीके से लिखा जाता है एच कॉन्सोनेंट, अपवर्ड एच एंड दिस डाउनवर्ड एच। और दोनों का यूज हमने बताया था कि एच हमारा कहाँ पे यूज होगा। सबसे पहले स्पेशल रूल इसमें आया था कि जब अकेला एच किसी वर्ड में आता है या उसके बाद के और जी आता है तो हमें डाउनवर्ड यूज करना हर एक वर्ड में करना है, करना था, उस रूल के अकॉर्डिंग करना है। और एक रूल इसी में सेम आया था कि जिन वर्ड्स में हम डाउनवर्ड एच को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल जो पहले आया था, आप उसको याद कीजिए कि जो अभी मैंने बताया अकेला एच आए या उसके बाद के या जी आए तो डाउनवर्ड एच, और इन्हीं वर्ड्स का डेरिवेटिव्स बढ़ता क्रम किसी वर्ड में आता है तो आपको उस वर्ड में भी डाउनवर्ड एच यूज करना था। इसके अलावा सभी वर्ड्स में हम एच को अपवर्ड ही यूज कर रहे हैं। डाउनवर्ड का रूल में बताया अपवर्ड यूज करते हैं, उसी से रिलेटेड अब ये आया है टिक एंड डॉट एच बी। लेकिन इसमें पहले जो मैंने आपको बताया यही रूल है कि जनरली द अपवर्ड एच अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज यूज, ज्यादातर हम अपवर्ड एच यूज करते हैं। जो मैंने रूल बताया कि अकेला एच आया किसी वर्ड में है या हाई तो उसमें हमने क्या, या हाई का आया तो उसमें हमने आपको डाउनवर्ड एच यूज किया। ये यही बताता है कि हमने ये रूल पहले पढ़ा। लेकिन अब ये कहता है द अपवर्ड फॉर्म इज यूज फॉर हाफ लेंथ एच स्टैंडिंग अलोन। ये बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट करने वाली बात है कि जो हम एच के साथ हालविंग अगर करेंगे, पहला रूल है कि एच के साथ हम हालविंग करेंगे कि कभी भी कोई ऐसा वर्ड जिसमें अकेला एच आए और हमें हालविंग करनी पड़ रही है तो वो सिर्फ अपवर्ड पे ही होगा हालविंग। जैसे हेट वर्ड है, डाउनवर्ड पे नहीं करेंगे आप। अब देखो ये इसलिए बताया गया ये रूल यहाँ पे कि हम सोचते हैं कि यार अकेला एच आया है इस वर्ड में तो डाउनवर्ड क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अब ये रूल आ गया है कि अकेला एच तो है लेकिन हालविंग हम डाउनवर्ड पे कभी नहीं करेंगे यूज। अकेला है कोई वर्ड बना हुआ है तो उसमें एडिशन टीओडी हालविंग के लिए होती है, लेकिन अपवर्ड पे ही होगी, डाउनवर्ड कभी हालविंग नहीं होगी। तो बने रहिए पेज नंबर 121 पे आप, जो मैं आपको पेज नंबर 21 पे आप बने हुए हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि YouTube से आप सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट कम से कम बुक साथ हो, हमारे रूल्स को ध्यान से देखिए, ध्यान से उसको फॉलो कीजिए, तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगला रूल है ए स्मॉल टिक रिटर्न एज शो रिप्रेजेंट एच बिफोर एम एल एंड डाउनवर्ड आर। समझने की बात है कि एच को हम बिफोर एल एम एंड डाउनवर्ड आर,
इनसे पहले अगर एच आता है तो एक टिक के रूप में आएगा, ये कहता है टिक के रूप में आएगा। कारण है जल्दी बनेगा, छोटा बनेगा, और कुछ ऐसी अगर इनके साथ हम एच पूरा यूज करते थे बहुत सारे वर्डों में हमें बनाते वक्त मुश्किलें आती हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए कहता है कि टिक एच यूज करना। जैसे वर्ड है होम, आइए होम, मैं बता रहा हूँ एल से पहले, एम से पहले डाउनवर्ड, एल आर से पहले एच को टिक के रूप में ही यूज करेंगे। जैसे वर्ड है आपका होम, टिक एच एम, होम। तो ये एच पूरा मतलब पूरा हम बना भी लें औचित्य नहीं है, जब टिक आ गया छोटा करने के लिए बताया है, जल्दी लिखने के लिए बताया है, तो इसका यूज करेंगे। इसी में वर्ड है हॉल, हॉल, एच टिक एल, हॉल। तो आप ध्यान दीजिए कि हम टिक यूज कर रहे हैं बिफोर डाउनवर्ड एल, एम और के। इनसे पहले हम डाउनवर्ड एम, एल और डाउनवर्ड आर से पहले टिक यूज कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल वर्ड्स हैं, बहुत सारे हैं और रेगुलर यूज होने वाले वर्ड हैं ये, और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हार्ट है, इसमें हार्ट, हालविंग आ गया, हालविंग के साथ आ गया टिक के रूप में हार्ट, और इसका यूज करोगे स्पीडली तो आपको पता लगेगा कि हमें एच पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा टिक हमने बना दिया। अब इसके बाद एक जो इस रूल का है टिक एंड डॉट एच, टिक एच तो हमने बता दिया आपको। अब डॉट एच का बड़ा महत्व है शॉर्ट हैंड में, कि है तो बहुत लिमिटेड वर्ड ऐसे जहां हम बीच में एच टिक डॉट के रूप में यूज करते हैं। और डॉट के रूप में हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वहां पर एच आपका बनेगा नहीं, बनेगा तो अदर कॉन्सोनेंट के साथ सर्कल वगैरह बनाएगा या कुछ दिक्कत पैदा करेगा। तो ऐसे वर्ड में उसको हम एक डॉट के रूप में यूज करते हैं। रूल है वेयर इट वुड बी एक्वायर्ड टू राइट द स्ट्रोक एच इन द मिडल ऑफ ए वर्ड, जब किसी वर्ड के बीच में एच लिखना मुश्किल हो। एच इज रिप्रेजेंट बाय ए लाइट डॉट प्लेस अलोंग साइड द वावल साउंड इन वर्ड्स सच एज। रूल बताया गया है कि किन वर्डों में आप जैसे करोगे, एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया, आप ये बात ध्यान रखिए कि इन वर्ड्स में एच बीच में आया है और वो वावल एच बनना बड़ा मुश्किल है, तो एच के क्लोज टू जो वावल है उसी के साथ में एक लाइट डॉट हमें रिप्रेजेंट करेगा एच। जैसे वर्ड है परहैप्स, एग्जाम्पल आपको देता हूं परहैप्स। लेकिन अपने बुक पे बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों को और बच्चों को फ्रेंड सर्कल में बताइए कि भाई शॉर्ट हैंड के क्या फायदे हैं, इसको करने से कितनी जल्दी सरकारी नौकरी मिलती है। परहैप्स वर्ड है, परहैप्स। तो अगर इसने कहा डॉट, एच नहीं बनाया बीच में, परहैप्स ये है, यहां पे डॉट आ जाए। इस डॉट का मतलब है कि यहां पे हमने एच की जगह उस वावल के साथ जो एच के साथ आया एक डॉट लगा दिया। लाइकलीहुड है, वर्ड है लाइकलीहुड। अब देखिए कितनी अच्छी आउटलाइन है और एच भी नहीं बना और जल्दी बन गया लाइकलीहुड। अब देखो लाइकलीहुड एच डबल ओ, हम बना रहे हैं लाइकली डी, एच नहीं बनाया, ये हुड डॉट है, डैश है डबल ओ के लिए, ओ के साउंड के लिए, ये डॉट हमारा एच है, लाइकलीहुड। सिंपल है। अब यहाँ पे अगर हम सोचते हैं भाई एच बनाए तो क्या होगा, देखना लाइकली और हु एच बनेगा नहीं, ये इनसाइड तो सर्कल होता है। आप इसको कैसे बनाओगे, किसी भी तरीके से बनाने की कोशिश करोगे तो इसको बाहर लोगे, वैसे ऊपर वाली लाइन को टच करेगा, मतलब मुश्किल है। वहां पे हमें मतलब डॉट एच यूज ही करना पड़ेगा उन वर्ड्स में, ये 5 वर्ड्स में, एग्जांपल्स में। और मैं जहां तक मुझे अपना एक एक्सपीरियंस है, मुश्किल से ही 15 वर्ड और होंगे जहां आगे आपको आएंगे और अपने आप सोच के आप करोगे यार ये एच नहीं बन रहा, उसमें आप डॉट यूज करोगे। हम आते हैं पेज नंबर 122। इसमें वही है, इसके बाद इस रूल के बाद भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है आपकी, लेकिन
पिछली शॉर्ट फॉर्म्स करते रहिए, याद करते रहिए, रिपीट करते रहिए, लिखते रहिए। अब एक्सरसाइज नंबर 113 है, इसकी आप पहले आराम से रीडिंग कर लेंगे। 113 नंबर एक्सरसाइज है। उसके बाद तरीका वही रहेगा कि आपको एक लाइन में जहाँ तक आता है उसको 5 टाइम मिनिमम, मैक्सिमम कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो। और उसकी इंग्लिश फिर अपने आप आपको पढ़ के लिखनी है। तो ऐसे आप ये 113 नंबर एक्सरसाइज कर लेंगे। और हमारी ये 27th क्लास अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके।